صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب اس بیان میں کہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 351 ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ محمد سے، وہ امتیہ سے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں، البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے۔ اور عبداللہ بن رجا نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے، کہا ہم سے امتیہ نے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب نماز میں گدی پر تہبند باندھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 352 ترجمہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقد بن محمد نے محمد بن منقدر کے حوالہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی، جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو کپڑے بھی کس کے پاس تھے؟ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب نماز میں گدی پر تہبند باندھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 353 ترجمہ ہم سے ابو مصعب بن عبداللہ مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدال الرحمن بن ابی الموالی نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب اس بیان میں کہ صرف ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ حدیث نمبر 354 ترجمہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن رو نے اپنے والد کے حوالہ سے بیان کیا، وہ عمر بن ابی سلمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب اس بیان میں کہ صرف ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ حدیث نمبر 355 ترجمہ ہم سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے عمر بن ابی سلمہ سے نقل کر کے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب اس بیان میں کہ صرف ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ حدیث نمبر 356 ترجمہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے والد سے جن کو عمر بن ابی سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب اس بیان میں کہ صرف ایک کپڑے کو بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز و درست ہے۔ حدیث نمبر 357 ترجمہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک بن انس نے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نضر سالم بن امیہ سے کہ ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو امرہ یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے ہانی بنت ابی طالب سے یہ سنا، وہ فرماتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی آئی ہو ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور 8 رکعت نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्हानी जिसे तुमने पनाह दे दी हमने भी उसे पनाह दी। उम्हानी ने कहा कि ये नमाज चाशत थी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब इस बयान में कि सिर्फ एक कपड़े को बदन पर लपेटकर नमाज पढ़ना जायज़ व दुरुस्त है। हदीस नंबर 358। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने इब्न शहाब के हवाला से खबर दी, वो सईद बिन मुसैयब से नकल करते हैं, वो अबू हरीरा से कि एक पूछने वाले ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ बुरा नहीं, भला किया तुम सब में हर शख्स के पास 2 कपड़े हैं। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब जब एक कपड़े में कोई नमाज पढ़े तो उसको कंधों पर डाले। हदीस नंबर 359। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद ने इमाम मालिक राक के हवाला से बयान किया, इन्होंने अबुल ज़नाद से, इन्होंने अबदाल रहमन अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को भी एक कपड़े में नमाज इस तरह ना पढ़नी चाहिए कि इसके कंधों पर कुछ ना हो। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब जब एक कपड़े में कोई नमाज पढ़े तो उसको कंधों पर डाले। हदीस नंबर 360। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अबदाल रहमन ने यही बिन अबी कसीर के वासिता से, इन्होंने अकरमा से, यही ने कहा मैंने अकरमा से सुनाया, मैंने उनसे पूछा था तो अकरमा ने कहा कि मैंने अबू हरीरा से सुना, वो फरमाते थे, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये इरशाद फरमाते सुना था कि जो शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े उसे कपड़े के दोनों किनारों को उसके मुखालिफ सिमत के कंधे पर डाल लेना चाहिए। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब जब कपड़ा तंग हो तो किया जाए। हदीस नंबर 361। तर्जुमा। हमसे यही बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने, वो सईद बिन हारिस से, कहा हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से एक कपड़े में नमाज पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा बुवात में गया। एक रात में किसी ज़रूरत की वजह से आपके पास आया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हैं। उस वक्त मेरे बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, इसलिए मैंने इसे लपेट लिया और आपके बाजू में होकर मैं भी नमाज में शरीक हो गया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो दरियाफ्त फरमाया, जाबिर इस रात के वक्त कैसे आए? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़रूरत के मुताल्लिक कहा। मैं जब फारिग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुमने क्या लपेट रखा था जिसे मैंने देखा? मैंने अर्ज़ की कि एक ही कपड़ा था, इस तरह ना लपेटता तो किया करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो कुशादा हो तो उसे अच्छी तरह लपेट लिया कर और अगर तंग हो तो इसको तहबंद के तौर पर बांध लिया कर। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब जब कपड़ा तंग हो तो किया जाए। हदीस नंबर 362। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने, इन्होंने सुफियान सोरी से, इन्होंने कहा मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया सहल बिन साद सादी से, इन्होंने कहा कि कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर अज़ारें बांधे हुए नमाज पढ़ते थे और औरतों को आपके ज़माने में हुक्म था कि अपने सरों को सजदे से इस वक्त तक ना उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाएं। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब शाम के बने हुए चक़ा में नमाज पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 363। तर्जुमा। हमसे यही बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआविया ने आमिश के वासिता से, इन्होंने मुस्लिम बिन सबी से, इन्होंने मुसर्रुक बिन अजद से, इन्होंने मगीरा बिन शोबा से, आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा तबूक में था। आपने एक मौका पर फरमाया, मगीरा पानी की छागल उठा ले। मैंने इसे उठा लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और मेरी नज़रों से छप गए। आपने क़ज़ाए हाजत की। उस वक्त आप शामी जिबा पहने हुए थे। आप हाथ खोलने के लिए आस्तीन ऊपर चढ़ानी चाहते थे लेकिन वो तंग थी, इसलिए आस्तीन के अंदर से हाथ बाहर निकाला। मैंने आपके हाथों पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू की तरह वज़ू किया और अपने खफ़ीन पर मसह किया, फिर नमाज पढ़ी। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब बल्ला ज़रूरत ननगा होने की कराहियत नमाज में हो या और किसी हाल में। हदीस नंबर 364। तर्जुमा।
हमसे मतर बिन फजल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे रू बिन इबादा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे ज़करिया बिन इसहाक़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने, इन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले काबा के लिए कुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। उस वक्त आप तहबंद बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और उसे पत्थर के नीचे अपने कंधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। जाबिर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद खोल लिया और कंधे पर रख लिया। उसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। इसके बाद आप कभी नंगे नहीं देखे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब कमीस और पाजामा और जानगिया और कबा चुका पहनकर नमाज पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 365। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया कि कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने अय्यूब के वासिता से, इन्होंने मोहम्मद से, इन्होंने अबू हरीरा से, आपने फरमाया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और उसने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम सभी लोगों के पास 2 कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला उम्र से एक शख्स ने पूछा तो इन्होंने कहा जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है तो तुम भी फरागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठा कर ले। कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहबंद और कमीज, कोई तहबंद और कबा में, कोई पाजामा और चादर में, कोई पाजामा और कमीज में, कोई पाजामा और कबा में, कोई जान गया और कबा में, कोई जान गया और कमीज में नमाज पढ़े। अबू हरीरा ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जान गया और चादर में नमाज पढ़े। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब कमीस और पाजामा और जानगिया और कबा चुका पहनकर नमाज पढ़ने के बयान में। हदीस नंबर 366। तर्जुमा। हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न अबी ज़िब्नी ज़हरी के हवाला से बयान किया, इन्होंने सालिम से, इन्होंने इब्न उम्र से, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कमीज़ पहने, ना पाजामा, ना बारान कोट और ना ऐसा कपड़ा जिसमें ज़फ़रान लगा हुआ हो और ना वरस लगा हुआ कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियाँ ना मिलें जिनमें पाँव खिला रहता हो, वो मोज़े काट कर पहन ले ताकि वो टखन से नीचे हो जाएं। और इब्न अबी ज़िब ने इस हदीस को नाफा से भी रिवायत किया, इन्होंने ऐसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत किया है। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब 70 का बयान जिसको ढांकना चाहिए। हदीस नंबर 367। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने इब्न शहाब से बयान किया, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा से, इन्होंने अबू सईद ख़दरी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना फरमाया और इससे भी मना फरमाया कि आदमी एक कपड़े में इत्तिबा करे और इसकी शर्मगा पर अलहदा कोई दूसरा कपड़ा ना हो। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब 70 का बयान जिसको ढांकना चाहिए। हदीस नंबर 368। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, जो अबुल ज़नाद से नकल करते हैं, वो अरज से, वो अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की बीवाओ फ़रोख्त से मना फरमाया। एक तो छूने की बी से, दूसरे पीटने की बी से और इस्तेमाल समा से, जिसका बयान ऊपर गुजरा, और एक कपड़े में गोट मार कर बैठने से। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब 70 का बयान जिसको ढांकना चाहिए। हदीस नंबर 369। तर्जुमा। हमसे इसहाक ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझे मेरे भाई इब्न शहाब ने अपने चचा के वासिता से, इन्होंने कहा मुझे हमीद बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने खबर दी कि अबू हरीरा ने फरमाया कि इस हज के मौका पर मुझे अबू बकर ने यौम नहर ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख में ऐलान करने वालों के साथ भेजा, ताकि हम मुनी में इस बात का ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मशरिक हज नहीं कर सकता और कोई शख्स नंगे होकर बैत अल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। हमीद बिन अबदाल रहमान ने कहा, इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अबू बकर के पीछे भेजा और इन्हें हुक्म दिया कि वो सूरत बरात पढ़कर सुना दें और इसके मज़ामीन का आम ऐलान कर दें। अबू हरीरा फरमाते हैं कि अली ने हमारे साथ नहर के दिन मुनी में 10वीं तारीख को ये सुनाया कि आज के बाद कोई मशरिक ना हज कर सकेगा और ना बैत अल्लाह का तवाफ़ कोई शख्स नंगे होकर कर सकेगा। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब बग़ैर चादर ओढ़े सिर्फ एक कपड़े में लपट कर नमाज पढ़ना भी जायज़ है। हदीस नंबर 370। तर्जुमा।
हमसे अब्दुलअजीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, कहा मुझसे अबदाल रहमान बिन अबी अलमवाल ने मोहम्मद बिन मुनकदर से, कहा मी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की खिदमत में हाजिर हुआ। वो एक कपड़ा अपने बदन पर लपेटे हुए नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि उनकी चादर अलग रखी हुई थी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, आपकी चादर रखी हुई है और आप इसे ओढ़े बगैर नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने फरमाया, मैंने चाहा कि तुम जैसे जाहिल लोग मुझे इस तरह नमाज पढ़ते देख लें। मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा था। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब रान से मुताल्लिक जो रिवायतें आई हैं। हदीस नंबर 371। तर्जुमा, हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने कि कहा हमें अब्दुलअजीज़ बिन सहीब ने अनस बिन मालिक से रिवायत करके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में तशरीफ़ ले गए। हमने वहाँ फजर की नमाज अंधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और अबू तुल्हा भी सवार हुए। मैं अबू तुल्हा के पीछे बैठा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी का रुख खैबर की गलियों की तरफ कर दी। मेरा घटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से छू जाता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान से तहबंद को हटाया, यहाँ तक कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाफ़ और सफ़ेद रानों की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब आप खैबर की बस्ती में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। उसने कहा कि खैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकले ही थे कि वो चला उठे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुँचे। और अब्दुलअजीज़ रावी ने कहा कि बाज़ अनस से रिवायत करने वाले हमारे साथियों ने वालखमीस का लफ्ज़ भी नकल किया है, यानी वो चला उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर पहुँच गए। बस हमने खैबर लड़कर फ़तह कर ली और कैदी जुमा किए गए। फिर दरिया आए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, कैदियों में से कोई बानदी मुझे इनायत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, कोई बानदी ले लो। इन्होंने सफ़ी बिन्त हई को ले लिया। फिर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सफ़ी जो क़रीज़ा और नज़ीर के सरदार की बेटी हैं, इन्हें आपने दहिया को दे दिया। वो तो सिर्फ़ आप ही के लिए मुनासिब थीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दहिया को सफ़ी के साथ बुलाओ। वो लाए गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो फरमाया कि कैदियों में से कोई और बानदी ले लो। रावी ने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी को आज़ाद कर दी और इन्हें अपने निकाह में ले लिया। साबित बनानी ने अनस से पूछा कि अबू हमज़ा, उनका महर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया रखा था? अनस ने फरमाया कि खुद इन्हीं की आज़ादी उनका महर था और उसी पर आपने निकाह किया। फिर रास्ते ही में सलीम अनस की वालिदा ने इन्हें दुल्हन बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात के वक्त भेजा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलहा थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास भी कुछ खाने की चीज़ हो तो यहाँ लाए। आपने एक चमड़े का दस्तरख्वान बिछाया। बाज़ सहाबा खजूर लाए, बाज़ घी। अब्दुलअजीज़ ने कहा कि मेरा ख्याल है अनस ने सत्तू का भी जिक्र किया। फिर लोगों ने उनका हलवा बना लिया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब औरत कितने कपड़ों में नमाज पढ़े। हदीस नंबर 372। तर्जुमा, हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको शोएब ने ज़हरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि आयशा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में कई मुसलमान औरतें अपनी चादरें ओढ़े हुए शरीक नमाज होतीं, फिर अपने घरों को वापस चली जाती थीं। उस वक्त इन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। सही बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब हाशा बेल लगे हुए कपड़े में नमाज पढ़ना और इसके नक्शवाओ निगार को देखना। हदीस नंबर 373। तर्जुमा, हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इब्राहिम बिन साद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्होंने रू से, इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में नमाज पढ़ी जिसमें नक्शवाओ निगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मर्तबा देखा। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि मेरी ये चादर अबू जहम आमिर बिन हुज़ैफ़ा के पास ले जाओ और उनकी अनबजानिया वाली चादर ले आओ, क्योंकि इस चादर ने अभी नमाज से मुझको गाफिल कर दी।
اور ہشام بن رو نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے عائشہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا، پس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب ایسے کپڑے میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی جس پر صلیب یا مورتیاں بنی ہوں تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں، اور ان کی ممانعت کا بیان۔ حدیث نمبر 374۔ ترجمہ، ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے انس سے نقل کیا کہ عائشہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب جس نے ریشم کے کوٹ میں نماز پڑھی پھر اسے اتار دیا۔ حدیث نمبر 375۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیس بن سعد نے یزید بن حبیب سے بیان کیا، انہوں نے ابو الخیر مرثد سے، انہوں نے عقبہ بن عامر سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفہ میں دی گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور نماز پڑھ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب سرخ رنگ کے کپڑے میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 376۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن عررہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمر بن ابی زاہدہ نے بیان کیا عن بن ابی حجیفہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو حجیفہ وہب بن عبداللہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمہ میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا فل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب چھت، ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 377۔ ترجمہ، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ لوگوں نے سہل بن سعد ساعدی سے پوچھا کہ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اب دنیائے اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر گابا کے جھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے اور رکوع کیا، آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلہ ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عیینہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب نماز کا بیان، باب چھت، منبر اور لکڑی پر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 378۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا کہ کہا ہم سے یزید بن ہارون نے کہا ہم کو حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چشمی میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالاخانہ پر بیٹھ گئے، جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔
सहाबा मिजाज परसी को आए। आपने इन्हें बैठकर नमाज पढ़ाई और वो खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए। बस जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और अगर खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। और आप 29 दिन बाद नीचे तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो 1 महीना के लिए कसम खाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना 29 दिन का है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब जब सजदे में आदमी का कपड़ा इसकी औरत से लग जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 379। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया खालिद से, कहा कि हमसे सुलेमान शीबानी ने बयान किया अब्दुल्लाह बिन शदाद से, इन्होंने मैमूना से, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और हाइज़ा होने के बावजूद मैं उनके सामने होती। अक्सर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा मुझे छू जाता। इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों से बने हुए एक छोटे से मसले पर नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब बोरिए पर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 380। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से, इन्होंने अनस बिन मालिक से कि इनकी नानी मलिका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना तैयार करके खाने के लिए बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद फरमाया कि आओ तुम्हें नमाज पढ़ा दूँ। अनस ने कहा कि मैंने अपने घर से एक बोरिया उठाया जो कसरत इस्तेमाल से काला हो गया था। मैंने इस पर पानी छिड़का। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उसी बोरिए पर खड़े हुए, और मैं और एक यतीम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू ज़मीरा के लड़के ज़मीरा आपके पीछे सफ बांधकर खड़े हो गए, और बूढ़ी औरत अनस की नानी मलिका हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई और वापस घर तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब खजूर की चटाई पर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 381। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया कि कहा हमसे शोबा ने कहा हमसे सुलेमान शीबानी ने अब्दुल्लाह बिन शदाद के वास्ते से, इन्होंने उम्मुल मुमिनीन मैमूना से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदागाह यानी छोटे मसले पर नमाज पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब बिछौने पर नमाज पढ़ना जायज़ है। हदीस नंबर 382। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया कि कहा मुझसे इमाम मालिक ने उमर बिन उबैदुल्लाह के गुलाम अबुलज़र सालिम के हवाला से, इन्होंने अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा से, आपने बतलाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सो जाती और मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िबला में होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मेरे पाँव को आहिस्ता से दबा देते। मैं अपने पाँव समेट लेती और आप जब खड़े हो जाता तो मैं इन्हीं फिर फैला देती। इन दिनों घरों में चिराग भी नहीं हुआ करते थे। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब बिछौने पर नमाज पढ़ना जायज़ है। हदीस नंबर 383। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने अकील से, इन्होंने इब्न शहाब से, उनको रूह ने खबर दी कि आयशा ने इन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बिछौने पर नमाज पढ़ते और आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क़िबला के दरमियान इस तरह लेटी होती जैसे नमाज के लिए जनाजा रखा जाता है। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब बिछौने पर नमाज पढ़ना जायज़ है। हदीस नंबर 384। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने हदीस बयान की यजीद से, इन्होंने इराक से, इन्होंने रू बिन ज़ुबैर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिछौने पर नमाज पढ़ते जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सोते, और आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क़िबला के दरमियान इस बिस्तर पर लेटी रहती। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब सख्त गर्मी में कपड़े पर सजदा करना जायज़ है। हदीस नंबर 385। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद हश्शाम बिन अब्दुल मलक ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझे गालिब क़ितान ने बकर बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर सख्त गर्मी की वजह से कोई हम में से अपने कपड़े का किनारा सजदे की जगह रख लेता। सही बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब जूतों समेत नमाज पढ़ना जायज़ है।
حدیث نمبر 386 ترجمہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی نے بیان کیا، کہا میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 387 ترجمہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے اعمش کے واسطہ سے، اس نے کہا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے سنا، وہ حمام بن حارث سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جریر آخر میں اسلام لائے تھے۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 388 ترجمہ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا کہ کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مسروق بن اجد سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے تو اس کی نماز کے متعلق کیا فتوی ہے۔ حدیث نمبر 389 ترجمہ ہمیں سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطہ سے، وہ ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا، جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب سجدہ میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے ہر دو کوہنیوں کو جدا رکھے۔ حدیث نمبر 390 ترجمہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے حدیث بیان کی بکر بن مضر نے جعفر سے، وہ ابن ہرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتا کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 391 ترجمہ ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے منصور بن سعد نے میمون بن سیاح کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 392 ترجمہ ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے حمید طویل کے واسطہ سے، انہوں نے روایت کیا انس بن مالک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ علی بن عبداللہ بن مدینی نے فرمایا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاح نے انس بن مالک سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ صحیح بخاری کتاب نماز کا بیان باب قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 393
तर्जुमा। इब्न अबी मरियम ने कहा, हमें यही बिन अयूब ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे हमीद ने हदीस बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करके हदीस बयान की। अली बिन अब्दुल्लाह बिन मदीनी ने फरमाया कि हमसे खालिद बिन हारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमीद तवील ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैमून बिन सियाह ने अनस बिन मालिक से पूछा कि अबू हमजा, आदमी की जान और माल पर ज़ियादती को क्या चीज़ें हराम करती हैं? तो इन्होंने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हमारे क़िबला की तरफ मुँह किया और हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है। फिर इसके वही हुकूक़ हैं जो आम मुसलमानों के हैं और इसकी वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आम मुसलमानों पर हैं। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब मदीना और शाम वालों के क़िबला का बयान और मशरिक़ का बयान। हदीस नंबर 394। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, कहा हमसे ज़हरी ने अता बिन यजीद लैसी के वासिता से, इन्होंने अबवायूब अंसारी से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो उस वक्त ना क़िबला की तरफ मुँह करो और ना पीठ करो, बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ उस वक्त अपना मुँह कर ली करो। अबवायूब ने फरमाया कि हम जब शाम में आए तो यहाँ के बीतुल ख़ला क़िबला रुख बने हुए थे, जब हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो हम मुड़ जाते और अल्लाह अज़्ज़वजल से इस्तग़फ़ार करते थे। और ज़हरी ने अता से इस हदीस को उसी तरह रिवायत किया। इसमें यूँ है कि अता ने कहा मैंने अबवायूब से सुना, इन्होंने उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब अल्लाह अज़्ज़वजल का इरशाद है कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। हदीस नंबर 395। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन दीनार ने, कहा हमने अब्दुल्लाह बिन उमर से एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जिसने बीतल्लाह का तवाफ़ उम्रा के लिए किया लेकिन सफ़ा और मरू की सही नहीं की, क्या ऐसा शख्स बीतल्लाह के तवाफ़ के बाद अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने 7 मरतबा बीतल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम के पास 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर सफ़ा और मुर्दा की सही की और तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल-अहज़ाब 21। इमरू बिन दीनार ने कहा, हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी ये मसला पूछा तो आपने भी यही फरमाया कि वो बीवी के करीब भी इस वक्त तक ना जाए जब तक सफ़ा और मरू की सही ना कर ले। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब अल्लाह अज़्ज़वजल का इरशाद है कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। हदीस नंबर 396। तर्जुमा। इमरू बिन दीनार ने कहा, हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी ये मसला पूछा तो आपने भी यही फरमाया कि वो बीवी के करीब भी इस वक्त तक ना जाए जब तक सफ़ा और मरू की सही ना कर ले। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब अल्लाह अज़्ज़वजल का इरशाद है कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। हदीस नंबर 397। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया सैफ़ इब्न नबी सुलेमान से, इन्होंने कहा मैंने मुजाहिद से सुना, इन्होंने कहा कि इब्न उमर की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, एलो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुँचे और आप काबा के अंदर दाखिल हो गए। इब्न उमर ने कहा कि मैं जब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से निकल चुके थे, मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज पढ़ी है? इन्होंने कहा कि हाँ, 2 रकत इन 2 सतूनों के दरमियान पढ़ी थीं, जो काबा में दाखिल होते वक्त बाएं तरफ वाक़े हैं। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो काबा के सामने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब अल्लाह अज़्ज़वजल का इरशाद है कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। हदीस नंबर 398। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ बिन हमाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इब्न जरेज ने खबर पहुँचाई अता इब्न अबी रबा से, इन्होंने कहा मैंने इब्न अब्बास से सुना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए तो उसके चारों कोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और नमाज नहीं पढ़ी। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो 2 रकत नमाज काबा के सामने पढ़ी और फरमाया कि यही क़िबला है। सही बुखारी। किताब नमाज का बयान। बाब हर मकाम और हर मुल्क में मुसलमान जहाँ भी रहे नमाज में क़िबला की तरफ मुँह करे। हदीस नंबर 399। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन रुजा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इसराइल बिन यूनुस ने बयान किया, कहा इन्होंने अब्वा साहब से बयान किया, कहा इन्होंने बरा बिन आज़ब से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से चाहते थे कि काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। आखिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं। फिर आपने काबा की तरफ मुँह कर ली और रहमक़ों ने जो यहूदी थे कहना शुरू किया कि इन्हें अगले क़िबला से किस चीज़ ने फेर दिया। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही की मलकियत है मशरिक़ और मग़रिब, अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है। जब क़िबला बदला तो एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, फिर नमाज के बाद वो चला और अंसार की एक जमात पर इसका गुज़र हुआ जो असर की नमाज बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके पढ़ रहे थे। उस शख्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नमाज पढ़ी है जिसमें आपने मौजूदा क़िबला काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। फिर वो जमात नमाज की हालत में ही मुड़ गई और काबा की तरफ मुँह कर ली। सही बुखारी किताब नमाज का बयान बाब हर मकाम और हर मुल्क में मुसलमान जहाँ भी रहे नमाज में क़िबला की तरफ मुँह करे। हदीस नंबर 400। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन अब्दुल्लाह दस्तूरी ने कहा हमसे यही बिन अबी कसीर ने मोहम्मद बिन अबदाल रहमान के वासिता से, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर ख्वाहिश का रुख किसी तरफ हो नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते।